स्वागत है आपका नाउ एंड बियॉन्ड के एक नए एपिसोड में। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, गौतम अदानी, क्या आप जानते हैं इन सब में क्या बात कॉमन है? इन सब ने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का जो जाल है उसको तोड़कर अपने सपनों को पूरा किया है, जबकि उसी जाल में हर दिन हम में से कोई ना कोई हंसते हुए और बहुत ही प्राउडली फंसता जा रहा है। I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. It's really an option that is being given a lot of preference to. Actually, in India, I know that more than 10,000 unschooling families. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. So they save their children from that system. Actually, a lot of universities all over the world are now giving preference to children who've never been to school because they really appreciate that they have a lot of practical knowledge and skills to share to the world. I can share my own experience. I went to the best schools of the country, and I actually don't think I even remember anything I learned in school. Most of my valuable learning experiences were outside the classroom. And if you ask any youth today, that's what you get to hear. I enjoyed going to school because I enjoyed the interval there where we could, have fun playing. But I don't remember anything I learned in school. My daughter is 15 and she's never been to school. Both me and my husband decided that we would unschool our family. अभी भी हम में से लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर टाइमली प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पूरा कर रहे हैं। 80 या 90% अटेंडेंस के साथ उन चैप्टर्स को मेमोराइज कर रहे हैं जो उन्हें स्कूल में या कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, और हर एक गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, बस एक उम्मीद में कि जब वो कॉलेज से निकलेंगे और उनके पास एक डिग्री होगी, उस डिग्री के आधार पर उन्हें एक जॉब मिलेगी एक अच्छी सैलरी के साथ, जिसके दम पर वो घर, कार और बाकी सुविधाएं जो उन्हें चाहिए वो पूरा कर सकेंगे। पर रियलिटी इस सब से काफ़ी अलग है। सरकार की नाकामी से हम लोग स्टूडेंट इस तरह बेरोजगार हो गए हैं। बिहार का ही लड़का क्यों इतना एग्रेसिव होता है? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। हम लोग को बताइए सर, कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई और आत्महत्या करते हैं। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy, but they are fast becoming frustrated over a lack of job. And this particular street is lined with bookshops. This is a place where students come to buy study material to help them pass tough government exams. Now, jobs, or rather lack of them, is a big election issue here. Only 12 out of the state's 70 million youth had a job as of December 2021. Now that is a lot of unemployed people. समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 2-3 साल तो कोरोना खा गए इसे। People in this state and other parts of the country too are desperate for jobs, and this desperation has turned into anger and sometimes even violence. The problem with school is it don't teach you how to be successful. That's the problem. There's nothing wrong with it. If you want to be a doctor, lawyer, dentist, you got to go to school. But if you want to be successful, what you're supposed to do? You have to develop the principles of success. School teaches you how to memorize stuff. We're going to test you on it, and you recall what you've read, and we're going to give you a grade on it. Okay, when you get that degree, how you become successful? Most of you in this room, including myself, went to a 20th century school. And a 20th century school conditioned you on how to learn in a passive way. The bell rang. When the bell rang, what are you supposed to do? Report to your position, your desk. And what you're supposed to do is go to your desk and you're supposed to start doing things on your own, initiate conversations. Is that what they wanted you to do in school? Yes or no? No. They told you to sit down and what? Shut up and wait till we tell you what to do. Which, by the way, was perfect for a 20th century job. They were preparing you at 5 years old so you'd be on an assembly line. The bell rings, you get in your position, you don't talk, you
only do what they tell you to do. If you think like what is education, like you're basically downloading data and algorithms into your brain, and it's actually amazingly bad. 15-16 साल स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने के बाद भी जब आप मुश्किल से एक डिग्री पा लेते हैं और आप नौकरी की तलाश शुरू करते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देना शुरू करते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी इंटरव्यूज़ देने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती, किसी न किसी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपके रिश्तेदार और जानने वाले आपकी काबिलियत पर शक करना शुरू कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम गिरने लगता है, आप बस अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपको एक नौकरी मिल जाए। फिर बहुत मेहनत करने के बाद आपको एक नौकरी मिल जाती है, पर सैलरी उतनी नहीं होती कि आप अपने और अपने परिवार वालों की खुशियां और ख्वाहिशें पूरी कर सकें। अब क्या करें? घर एक ज़रूरत है, आपको भी वो चाहिए। फिर आप एक बैंक के पास जाते हैं और होम लोन लेते हैं, फिर आपका घर आ जाता है। घर मिलते ही अब आपको एक कार चाहिए, फिर आप बैंक के पास जाते हैं और एक कार लोन से कार खरीद लेते हैं। आप अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में कोई ना कोई लोन लेने लग जाते हैं। अनजाने में ही सही, आप लोन और EMI की जाल में फंसने लगते हैं और जब तक आप ये रियलाइज़ करते हैं, फिर आप एक डर से हमेशा घिरे रहते हैं कि क्या होगा अगर कंपनी ने किसी वजह से आपको आपकी जॉब से निकाल दिया। फिर आप घर के खर्च कैसे चलाएंगे, बच्चों की स्कूल की फीस और लोन की EMI कैसे भरेंगे। इस कारण से आप अपनी खुशियों को छोड़कर परिस्थितियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आप हर दिन ऑफिस जाना शुरू करते हैं और वो काम करते हैं जो आपको करना पसंद भी ना हो। फिर काम करते करते एक समय ऐसा आता है जब आप रिटायर हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद आपने ही मेहनत कम की होगी, इसी वजह से आप फेल हो गए। पर यहीं आप गलत हैं। ये एजुकेशन सिस्टम ही इसलिए बनाया गया है ताकि आप फेल हो सकें। आप कोई भी सवाल ना पूछें, सिर्फ वही करें जो आपको करने के लिए कहा गया है। नहीं समझ में आया? तो इसके लिए हम इतिहास में पीछे चलते हैं। साल है 1735, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है, पर फैक्ट्रियों में काम करने वाले लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। उस समय लोगों का मेन ऑक्यूपेशन खेती हुआ करता था और लोग खेती को छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने में आनाकानी करने लगते थे। फैक्ट्रियों के मालिकों को ये चिंता सताने लगी कि अगर लोग हमारी फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे तो हमारी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें उन दिमाग को, उन माइंड्स को कंट्रोल करना होगा जो सही या गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, जो सिर्फ उसे ही सही मानते हैं जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है। और इसके लिए जो एज ग्रुप टारगेट किया गया वो था 5 साल से लेकर 13 साल तक। और इसी तरह एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने के लिए हर किसी को बाध्य किया गया और धीरे धीरे फैक्ट्री ओनर्स को इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसकी सफलता को देखकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस एजुकेशन सिस्टम को ना ही सराहा बल्कि एडॉप्ट भी किया, सिर्फ एक पर्पस के कारण, ताकि वो एक ऐसे माइंडलेस क्लास ऑफ वर्कर्स पैदा कर सकें जो सिर्फ ऑर्डर्स ओबे करें और उनकी क्वेश्चन करने की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करें अपने सुपीरियर्स की। उसी दौरान भारत में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। उनको भारत में रूल करने में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि वे बहुत थोड़े से थे और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। साल 1835 में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और इस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 का ड्राफ्ट तैयार हुआ। लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके भले के लिए उन्हें इंग्लिश सिखा रहे हैं, जबकि रियलिटी में ब्रिटिशर्स को एक ऐसा क्लास बनाना था
जो सिर्फ इंडियन कलर और ब्लड से हो, बल्कि ओपिनियन, मोरल और टेस्ट में इंग्लिश हो। धीरे धीरे वो अपने मकसद में कामयाब होने लगे। ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क से लेकर आर्मी में काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी जो इंग्लिश बोल सकते थे। अंग्रेज इंडियंस की मदद से इंडियंस पर रूल करने लगे थे। उन लोगों का ब्रेन वॉश इस हद तक किया गया था कि वो अंग्रेजों के ऑर्डर्स फॉलो करना अपनी ड्यूटी समझने लगे थे। पर हम आज़ाद हुए और आज़ादी के 76 साल के बाद भी क्या स्थिति बदली है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदली। आपका जन्म भी नहीं होता और आपके पेरेंट्स ये सोचने लग जाते हैं कि जब आप आएंगे तो आपको कौन सी अच्छी स्कूल में एडमिशन कराएंगे। फिर जब आप बोलने लगते हैं तो वो उस जगह की सबसे अच्छी स्कूल में आपका एडमिशन करा देते हैं, क्योंकि स्कूल आजकल के टाइम में एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आप एक फ्रेश माइंड के साथ स्कूल जाने लग जाते हैं। वहाँ आपको एक सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है बिना कुछ सोचे समझे कि आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपका इंटरेस्ट क्या है। आप वो चीज़ पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। आपके दिमाग में ये बात फिट कर दी जाती है कि अगर आप उनके दिए हुए सब्जेक्ट्स को ना पढ़ें और उनमें से आए हुए एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ना लाएं तो आप अपने लाइफ में कभी सक्सीड ही नहीं कर सकते। फ्रांस, इटली, रूस, जर्मनी जैसी कंट्रीज अपने अपने भाषाओं को प्रमोट करती हैं और हम इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल मानकर उसके पीछे भागने लगते हैं। हम ये क्वेश्चन कभी नहीं करते कि इंग्लिश जबकि एक ग्लोबल लैंग्वेज भी नहीं है, हम क्यों इतना मेहनत करते हैं इंग्लिश सीखने में। बच्चों का मन ना हो तो भी उन्हें मैथ्स के थ्योरम्स रटाए जाते हैं जिनका रियल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो बच्चे उन थ्योरम्स को रट रहे हैं या जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि इनका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ये हमें पढ़ाया गया है, पर इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता। पर यदि हम 2ab की जगह 3ab लिख दें तो लोग हम पे हंसने लगेंगे। एग्जाम में हमारे नंबर काट लिए जाएंगे। पेरेंट्स और सोसाइटी हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं कि हमने अगर स्कूल और कॉलेज में पढ़कर अच्छी नौकरी नहीं की तो हमसे ज़्यादा गलत कोई और इंसान नहीं है। किसी को ये जानने की ज़रूरत ही नहीं कि हमारा इंटरेस्ट या हमारी स्किल सेट क्या है। बच्चों को कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट बनने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट गोल है इंडस्ट्रीज को एक अफोर्डेबल, ओबीडियंट फैक्ट्री क्लास वर्कर देना जो कि सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करें और दिन रात सिर्फ इसी उम्मीद में मेहनत करें ताकि मंथ के एंड में सैलरी का चेक मिल सके। लोग अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इस एजुकेशन सिस्टम को देते हैं ताकि वो एक ऐसे इंसान के यहाँ नौकरी कर सकें जो उनसे कम पढ़ा लिखा है पर उसके पास रिसोर्सेज हैं। इस एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक इतना है कि ASER की एक स्टडी के हिसाब से यूथ पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका नौकरी करने के लायक ही नहीं है। हर 5 में से 1 युवा ये तक नहीं जानता कि उसे जो जॉब करनी है उसका नाम क्या है। हम कभी ये नहीं सोचते कि इंडिया में स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से ज़्यादा इंजीनियर्स बनते हैं, पर फिर भी स्विट्जरलैंड इनोवेशन और रिसर्च के मामले में नंबर 1 क्यों है। हम ये कभी नहीं पूछते कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास कोई नोबेल लॉरेट क्यों ना हुए। तो अब हम क्या करें, पढ़ाई करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। पर हमें इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल समझना छोड़ना होगा, खुद की स्किल्स रिकॉग्नाइज करके उसे पॉलिश करना होगा। हमें यह क्वेश्चन करना होगा कि किस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा है और कैसे है। इट इज़ हाई टाइम हम करंट एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना बंद करें और सिर्फ अपनी मन की सुने, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी स्किल सेट क्या है और हमारी एबिलिटी क्या है। नाउ एंड बियॉन्ड में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए